Hello everyone, welcome to the unit lecture. I am Saurabh. Today we are diving into the basics of electricity for class 10. We'll cover concepts like charges, potential difference, current, resistance, etc. Get started. Our first topic is current, which is denoted by capital I. The rate of flow of charges is called current. That means let us assume that it is a conductor. So it has charge inside it. As we know, every element in the world composed of atoms, and atoms have electrons and protons. We know that charges are two types, positive charge and negative charge. So here electrons are the negative charge and protons are the positive charge. When these charges flow through a conductor in a particular direction, then we get current. So from here we get the formula of current which is equals to charge divided by टाइम. अगर इसको हम न्यूमेरिकली लिखे तब क्या मिलेगा? करंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. सो आई विल बी इक्वल्स टू चार्ज which is denoted by q divided by t. So this is the formula of current. I is equals to Q by T. What is charge and its unit? So we basically know charges are of two types. One is positive charge and another one is negative charge. What are the positive charges? These are the protons. Protons are the positively charged and negatively charged are electrons. So we already know that charge is denoted by Q and charge are of two types, positive charge and negative charge. Positive charges are protons and negative charges are electrons. And the unit of charge is coulomb, which is denoted by capital C. Next, what is the SI unit of electric current? From the formula we get I is equals to Q divided by T. So if we put the units of charge, what is the unit of charge? It is coulomb. And what is the unit of time? It's second. So यहाँ से हमें I का यूनिट क्या मिल रहा है? कूलम पर सेकेंड. और कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर. Coulomb per second. Coulomb per second is known as ampere, which is denoted by capital A. So the SI unit of current is ampere, which is denoted by capital A. We can measure current by an instrument which is called ammeter. So basically current is measured by ammeter. So this is an ammeter. एमीटर ऐसा दिखता है जिसका दो टर्मिनल होता है जिसमें हमें वायर्स को ज्वाइन करके करंट निकालना होता है. ये एक टर्मिनल है. दिस इज वन टर्मिनल एंड दिस इज द अनदर टर्मिनल. और एमीटर को हम सर्किट डायग्राम में कैसे लिखेंगे? ऐसे राउंड करके उसके अंदर ए लिख देंगे तो ये बन गया हमारा एमीटर का सर्किट डायग्राम, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा एंड अनदर वन इज negative. So some important points about emitter is it measures current in a circuit. Okay, as we know, it is connected in series. अच्छा, तो अब देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं. मान लो इधर एक बल्ब है और इधर बैटरी है. एक सर्किट कंप्लीट कराना है और हमें इस सर्किट में क्या निकालना है? करंट निकालना है. तो इसमें एमीटर ज्वाइन करेंगे कैसे? सीरीज में. अब सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं? हम लाइन में लगा देते हैं एमीटर को. जैसे मान लो ये हमारा बल्ब था, बल्ब का सीधा या फिर लाइन में हमने क्या ज्वाइन कर दिया? एमीटर को ज्वाइन कर दिया. तो ऐसे ऐसे कनेक्शन को क्या बोलेंगे हम? सीरीज कनेक्शन. और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे और एमीटर के नेगेटिव को हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे. तो दिस इज ए सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं? लाइन में हम ज्वाइन करते हैं. देन इट हैज लो रेजिस्टेंस. और एमीटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत लो होता है. अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो ओम्स लॉ में आएगा, वो बाद में सिखाएंगे. और नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? एग्जांपल से समझते हैं. मान लो हमारा एक कंडक्टर है, कॉपर का लिया है या फिर एल्यूमिनियम का लिया है, किसी का भी लिया है. इसमें चार्जेस होगा.
अब ये जो चार्जेस है ये रेंडमली ऐसे मूव कर रहा होगा, तो यहाँ हमें करंट पाने के लिए क्या कराना पड़ेगा, चार्ज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। अब इसमें मूव कैसे करेगा, एग्जांपल से देखो, हमने क्या कर लिया, कंटेनर ले लिया पानी भरने वाला, अब इसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया इतना सा, और इसमें भी क्या कर दिया, पानी भर दिया इतना सा, और बीच में क्या कर दिया, एक पाइप से ज्वाइन कर दिया दोनों को। अब इस कंडीशन में ए से बी तक पानी फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में पानी का लेवल जो है वो सेम है, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस वाले कंटेनर में हम देखें तो इधर मान लो इतना सा पानी ले लिया और इसमें इतना सा पानी ले लिया। अब बेसिकली होगा क्या, पी से मान लो ये पी है और ये मान लो क्यू है, और इधर इधर भी सेम हमने क्या कर दिया, पाइप से ज्वाइन कर दिया दोनों को। तो इसमें क्या होगा, हमारा पानी हायर से लोअर तक क्या करेगा, मूव करेगा। अब क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इधर एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पानी का इतना सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, पी से क्यू तक पानी फ्लो हो पा रहा है। सिमिलरली कंडक्टर में हमें इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ता है। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो एक सर्किट ले लिया, इसमें बैटरी है और वायर्स है। अब बैटरी के ये वाला टर्मिनल होता है नेगेटिव और ये वाला टर्मिनल होता है पॉजिटिव। अब देखो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होता है। क्यों होता है, देखो क्या करता है, बेसिकली बैटरी क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है। बैटरी का काम होता है कि वो क्या करता है, उसके दो एंड्स में डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स का। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इधर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाला एग्जांपल में क्या देखा, जब हमारा पानी का लेवल सेम था तब पानी फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमने क्या कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तब क्या हो रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर तक क्या हो रहा था, पानी फ्लो हो रहा था। सिमिलरली यह भी क्या होगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कम है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव तक हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। इधर जो चार्जेस है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है इस किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस मूव करता है, फ्लो करता है, तब हमें करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ मूव कर रहा है, हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव तक, और हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा करंट जो प्रोड्यूस होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन का ऑपोजिट होता है, which is the opposite of the direction of the electrons. So the direction of electrons is negative to positive and the current is from positive to negative. So what is potential difference? The amount of work done to move unit charge from one point to another point of a conductor is called potential. हमारा बैटरी जितना वर्क डन करता है यूनिट चार्ज, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडीवी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन डिवाइडेड में चार्ज। So potential difference is denoted by V. V is equals to work done means W by Q. So where W is the work done and Q is the charge. What is the unit of potential difference? So from the formula V is equals to W by Q. ये हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का, और जिसमें
डब्ल्यू मतलब क्या था, वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, एंड क्यू मीन्स चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो अगर इसमें हम यूनिट को पुट कर दे, V इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा, W के जगह हम जूल पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट जूल in place of work done, and the unit of charge is coulomb. We got joule per coulomb is the unit of potential difference, and this joule per coulomb is called volt. So the SI unit of potential difference is volt, which is equals to joule per coulomb. Potential difference is measured by voltmeter, and the circuit diagram of voltmeter is same as ammeter, बस हमें ए की जगह इधर वी पुट कर देना है। ये हो गया हमारा वोल्टमीटर का सर्किट डायग्राम। सो सम important points about voltmeter is it is used to measure potential difference, as we know it is always connected in parallel। अब पहले हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ा था, अब इसमें पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन, और वोल्टमीटर को ऑलवेज हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, पैरेलली। तो अभी फिर से हम एक सर्किट कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया हमारा सर्किट, ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अब मान लो पूछा कि हमें इस लाइट के अक्रॉस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलली कनेक्ट करेंगे। जैसे ये हमारा लाइट था, इस लाइट के पैरेलली हम क्या कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। ऐसे कनेक्शन को क्या कनेक्शन बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। जहां हम चीजों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, वैसा कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और इधर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, और नेगेटिव को नेगेटिव की तरह। द वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, एमीटर में रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ओम्स लॉ, ये इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इस कंटेनर में मैं इतना पानी भर दिया और इसमें इतना, और नेक्स्ट केस में हमने क्या कर दिया, इसमें इतना भर दिया और इसमें इतना सा। अब देखो इस वाले कंटेनर में पानी का डिफरेंस कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है, इतना सा आ रहा है डिफरेंस। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पानी का बहाव या फिर स्पीड कम होगा और इसमें पानी का स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, जिसलिए पानी ज्यादा स्पीड से हो जाएगा। सिमिलरली ओम ने भी क्या किया था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया था। तो उसने क्या बोला था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर दें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर देंगे, तब हमारा करंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम डिक्रीज कर देते हैं, तब करंट भी क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस I के साथ कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V बढ़ने से I भी बढ़ेगा, और V घटने से I भी घट जाएगा। So according to Ohm's law, potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it। अब ये मान लो हमारा कंडक्टर है, अगर इसमें क्या कर दिया, डिफरेंस ज्यादा कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा कर दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। और अगर हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया, तब पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दिया, तब हमारा क्या हो जाएगा, करंट भी घट जाएगा। तो इधर से हमें रिलेशन क्या मिला कि V या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट। सो अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I। तो अगर यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठा के इक्वल साइन देंगे, तब हमारा इधर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट क्या होता है, इस मटेरियल या फिर इस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, और इस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है R, मींस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज ए बैरियर, मतलब करंट फ्लो हो रहा, मान लो ये करंट फ्लो हो रहा था, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा करंट फ्लो होने में, मतलब रुकावट क्रिएट करेगा। तो ये सब सब कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। तो इधर
प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटा के इक्वल साइन दिया तब इधर का कांस्टेंट क्या आया हमारा, आर, विच इज रेजिस्टेंस. सो दिस इज आवर मैथमेटिकल expression of Ohm's law where R is resistance. अब देखो इस फॉर्मूला से हम दो और फॉर्मूला मिल सकते हैं, जैसे V इज इक्वल्स टू क्या है, आई आर. अब I को इस तरफ लाने से क्या हो जाएगा, V बाय आई इज इक्वल्स टू R बन जाएगा. तो हम इधर से क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V बाय आई लिख सकते हैं. ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया. लेकिन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. अब अगर हम R को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बाय आर इज इक्वल्स टू आई. सो वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू V बाय आर. तो ये दो फॉर्मूला हमारा ओम्स लॉ से आता है. तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या देता है, रिलेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट. सो रेजिस्टेंस इज ए बैरियर or it is a it is a property of conductor which resist the flow of current. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो करंट को फ्लो होने में रुकावट क्रिएट करता है, मतलब बाधा देता है. सो एंड इट्स यूनिट. सो देखो ओम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिला था V इज इक्वल्स टू आई आर. अब देखो आर का यूनिट डिराइव करना है, तो R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, V बाय आई. अब अगर V का यूनिट पुट कर दे तो V का यूनिट होता है वोल्ट बाय I का यूनिट होता है एम्पियर. तो क्या मिल रहा है हमें, R का यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, और इस वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं हम, ओम. ओम वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम. और ओम को हम डिनोट करते हैं ऐसे. सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस किस चीज पर डिपेंड करता है. अब मान लो मैंने क्या किया, एक लंबा लंबा वायर ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, छोटा वायर ले लिया. अब ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट केस में जो लंबा कंडक्टर है इसमें करंट पास होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि उसका रास्ता क्या है, बहुत ज्यादा है. और ये छोटा वाला जो कंडक्टर है इससे क्या हो पाएगा, करंट इजीली फ्लो हो पाएगा क्योंकि इसका रास्ता कम है. तो इससे क्या मिल रहा है, हमारा करंट करंट कम कहाँ फ्लो हो रहा है, हमारा लॉन्ग वायर में. तो इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. जब वायर लंबा हो गया तब हमारा करंट कम फ्लो हो रहा था, और जब वायर हमारा छोटा हो गया तब करंट क्या हो रहा है, अच्छे से फ्लो हो पा रहा है. और जब लंबा वायर लेते हैं तब करंट फ्लो होने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन छोटा वायर में क्या होता है, करंट अच्छे से फ्लो हो पा रहा है. इसका मतलब क्या है, हमारा लंबा कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसके लिए ये अच्छे से फ्लो हो नहीं पा रहा है. और छोटा वाला वायर में क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस कम होगा जिसके लिए ये इजीली अच्छे से पास हो पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें भी रिलेशन क्या आ रहा है, देखो लेंथ इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, और लेंथ डिक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज हो रहा है. तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा रिलेशन आ गया. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मतलब लेंथ बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ घटने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी घट जाएगा. नेक्स्ट देखो, हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, देखो वायर को अगर तुम सामने से देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो अगर हम किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देते हैं, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, इस वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है एज कंपेयर टू दिस वन. अब देखो एरिया ज्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए रास्ता बहुत ज्यादा मिल जाएगा, वो फ्रीली मूव कर पाएगा.
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। जितना वायर थिक हो जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ गया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनके बीच में रिलेशन जो है वो उल्टा मिल रहा है। एक इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा एक फैक्टर है वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी क्या करता है, हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो उसके लिए एक डायग्राम दिया। लेट अस एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल and the area of cross section of the wire is a. So हमें मिला था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अब अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, देन क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर। सो अगेन यहाँ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठा के इक्वल साइन देते हैं तब क्या आता है, आएगा एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ भी कांस्टेंट क्या आएगा, इस मटेरियल का या फिर इस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी आएगा विच इज रॉ। Rho is a property of this material L by A. So what is this sign means, this is rho. We call it rho. And what is rho? It is nothing but it is resistivity. Resistivity. So rho is resistivity. So the relationship between resistance, length and area of cross section is this one. This expression is the derivation of the above equation. We derive the unit of resistivity. We know that R is equals to rho L by A. If we cross multiply, then it will become rho L is equals to RA. From here, we can write rho is equals to RA divided by L. So if we put the units of these quantities, then it will become R means resistance and the unit of resistance is ohm, and A means area. So unit of area is meter square and L means length. The unit of length is meter. So meter and 1 meter will be cancelled. Then we will get rho is equals to ohm meter. So the unit of resistivity is ohm meter. Therefore, the unit of rho is ohm meter.